দিল্লীত আজিও অব্যাহত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ মাজত মতানৈক্যই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত অপাৰেশ্যন লতাছৰ ধুমুহাই কঁপাইছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি আম আদমি পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ চলে বলে কৌশলেৰে দিল্লীৰ আপ চৰকাৰক উফুৰাৰ ফন্দি পাতিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপ চৰকাৰক উফুৰাৰ বাবে দিল্লীত বিজেপিৰ অপাৰেশ্যন লতাছ বিগত দিনকেইটাত এই অভিযোগে উত্থাপন কৰি আহিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে বুধবাৰে বিজেপিৰ অপাৰেশ্যন লতাছৰ বিৰুদ্ধে সিবিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিজেপিৰ অপাৰেশ্যন লতাছৰ বিৰুদ্ধে সিবিআইক অভিযোগ দাখিল উদ্দেশ্যে সংস্থাটোৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি গ'ল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা কৰ্মীসকল অৱশ্যে প্ৰতিবাদকাৰী আপ সদস্যই সিবিআই মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশত বাধা দিলে আৰক্ষীয়ে সিবিআইৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰতো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিজেপিৰ অপাৰেশ্যন লতাছৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা দিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ দলটোত আছিল সাংসদ সঞ্জয় সিং গৌৰৱ ভৰদ্বাজ আতিশী মালানাৰ দৰে শীৰ্ষ নেতৃত্ব পূৰ্বে আপৰ শীৰ্ষ নেত্ৰী আতিশী মালানাই অভিযোগ তুলিছিল যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেশ্যন লতাছৰ বিজেপিয়ে অপাৰেশ্যন লতাছ সফল কৰিবলৈ ৬,৩০০ কোটি টকা ব্যয় কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আতিশী মালানাই যি কথা তদন্ত বিচাৰি সিবিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল আপৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ তুংগত উঠিছে বিজেপি আৰু আপৰ ৰাজনৈতিক যুদ্ধ দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ সুৰানীতিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে দুৰ্নীতিৰ আঙুলি টোৱাইছিল দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে সিবিআই দুবাৰকৈ জেৰা চলাইছিল সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পাছতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ওলোটাই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰত্যাক্ৰমণ অপাৰেশ্যন লতাছৰ জৰিয়তে দিল্লী চৰকাৰক ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে এইদৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণে এতিয়া উত্তপ্ত কৰি তুলিছে দিল্লী ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আহক চাওঁ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কত আজি সাংবাদিকমেলত কি কথা ক'ব খুজিছিল দিল্লীৰ আপৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী আতিশী মালানাই अपनी पार्टी तोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो तो हम तुम्हें करोड़ों रुपए कैश में देंगे ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का फॉर्मूला है ये कोई एक बार या दो बार नहीं हुआ है ये फॉर्मूला बार बार भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल में सरकार गिराई भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में सरकार गिराई भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में सरकार गिराई भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार गिराई भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार गिराई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार गिराने का यही ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है जिस तरह से पहले सीबीआई के झूठे केस होते हैं फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को धमकाया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तुम्हें हम 20 करोड़ रुपया देंगे সেয়া আপৰ নেত্ৰী আতিশী মালানাৰ বক্তব্য আৰু তেওঁ এনেদৰে স্পষ্টকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰ আৰু বিজেপি দলটোৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াইছে দিল্লীৰ বিজেপিয়ে আহক চাওঁ আপৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ উত্তৰত কি ক'ব খুজিছে দিল্লী বিজেপিৰ নেতা মনীষ তিৱাৰীয়ে हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जहां दिल्ली में एक पर एक घोटाले होते जा रहे हैं वहीं दिल्ली में जिनका नाम कहीं महाठग है महाझूठे हैं अपनी बातों से लगातार पलटने वाले लोग ऐसे अरविंद केजरीवाल गैंग कभी भी दिल्ली की जनता के प्रश्न पे जवाब देने को तैयार नहीं है जरूरत है आज
कि दिल्ली की जनता को ये गारंटी मिले कि जो घोटाले हुए हैं वो वापस कैसे दिल्ली के खजाने में पैसे आएंगे। गारंटी इस बात की चाहिए कि भ्रष्टाचारी कैसे सलाखों के पीछे जाने चाहिए। गारंटी इस बात की हमें चाहिए कि दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के महिलाओं की जो गली गली शराब की दुकान खोलने का एक प्रयास किया गया, उस पर न्याय कैसे हो। इन सारी बातों का जवाब नहीं मिल रहा। और जो लोग लोकतंत्र का शपथ लेके, संविधान की शपथ लेकर के भोली भाली जनता को ठग करके कुर्सियों पे बैठ गए, उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं जो इशू को डाइवर्ट करने वाली हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भावनापूर्ण हैं, झूठ से भरी हुई हैं। और ऐसे प्रयास को दिल्ली की जनता या हम दिल्ली के सांसद साथों, हम इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम गंभीरता से बात भी करते हैं, गंभीरता से सवाल का जवाब भी चाहते हैं। हम सभी दिल्ली बीजेपी नेता मनोज तिवारीर बक्तव्य और आपर विरुद्धे केतবোৰ गुरुतर अभियोग उत्थापन कर कब खुजिছে যে आप दलটো এটা ঠগবাজি दल और कथार विश्वास नकरिবলৈ दिल्लीवासीলৈ आह्वान जनाइছে मनोज तिवारी। और এই সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দিল্লীত এতিয়া যেন আৰম্ভ হৈছে বোকাচতিয়াৰ আন এক নতুন ৰাজনীতি। আহক চাওঁ আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ বক্তব্য। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भोला बालक बन गए और वो सारे भोला बालक भगवान के पास पहुंचकर कह रहे हैं, प्रभु हमें बताओ, हमने महाराष्ट्र में विधायकों की तोड़फोड़ कैसे की, इसकी जांच कराओ। तब तक महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठने लगी, खोका खोका 50 खोका, खोका खोका 50 खोका, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। भाजपा चुप हो गए, खामोश हो गए। कह रहे शिंदे की जांच कराओ, विधायकों को कैसे तोड़ा। फिर कहने लगे, प्रभु शारदा स्कैम चल रहा था, नारदा स्कैम चल रहा था, घोटालेबाज था मुकुल राय, घोटालेबाज था शुभेंदु अधिकारी, उसको हमने अपनी पार्टी में कैसे शामिल किया, इसकी जांच कराओ। फिर पता चला उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को बनाया, शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी का विधानसभा में लीडर बना दिया। चुप हो गए। फिर भाजपाइयों ने कहा वाटर घोटाला हमने खोला था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, वाटर घोटाला हमने खोला था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। फिर पता चला उनकी पार्टी ने हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपाई कह रहे उत्तराखंड में हमने कैसे तोड़फोड़ करके विधायक तोड़े थे, इसकी जांच कराओ। गोवा में हमने कैसे तोड़फोड़ करके विधायक खरीदे थे, इसकी जांच कराओ। कर्नाटक में हमने तोड़फोड़ करके कैसे विधायक खरीदे थे, मंत्री पद का कैसे लालच दिया था, इसकी जांच कराओ। मध्य प्रदेश में हमने कैसे विधायक तोड़े थे, मंत्री पद का लालच दिया था, एक सरकार को गिराया था, इसकी जांच कराओ। भाजपाई कह रहे हैं पूरे देश में उन्होंने कैसे तोड़फोड़ की थी, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। अरे भोला बालक भाजपाइयों, तुम्हारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रात को जब विधायक सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। সেয়া আপোনালোকে টেলিভিছনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ আজি সংবাদ মেলৰ সম্পাদিত অংশ।